nanga tene loknyan thapskan khaspa gone chosne loknyan tene khongra chosne chamsik ryaspa jatteo teo ngija changmedola zigra pulchezino thorene falla tene mimanglangyas ladakspa changmefia rinmetba tene I ngata loknyan gun ngija changmala zigra pulchezino shkyoda dajun ngija langyas nangyamponga je julonteo kalin mimang changma tene I Sindhu Sanskriti Kendri hall benanga nami gun nampo shkyoda jat yang ngatang sama tugisino tene I covid I nagyam bena ngata shiutingun rere putte mana jukshe singata nangwa meteno jua polin tene ngalok singi jashkot tenang tene juksa jates taldik podene human pa philok peka picture time junji ngata serpo chane jukshigot kyale te teo angatai movie theater jokshi chunji ke taldik si jate mimas gun la tene dangdri itus pena kana covid jaste ngata changman na ngata jusgu shes ngata domba jik jung pane falla tene itus pena nga tene iu chogo shes ngata demo jik chao samkane samajik nangyampo teo nangyampo ngata lokyan thapkan gunla tene skapshik ka tus pena ka platform beka tene philok ne ngata lokyan thapkan khaspa indo ka ngata movie makers indo documentary indo editing indo camera indo cinematography indo chisa thok ne ngata changma ika skyot use te re nang re ichose kan ngatang rai alongyan thapkan gunla tabik singata experience of shik thop na samkane sambaji nangyampo tyo nangyampo yang ikane ngata laks magashan jat kan ngata filmmakers ma boy kyak tene khongone las gun ladakh ne pilo a khenyan se singata zukshimeda hezen nang I thuksa mogomana tene madam usko jab padma mo ngata information secretary juksteno yang ngata ladakh se spalngam chik tene khonge thuksa mi sals pasang tene khong nangyampo filmmakers ngata lak se kan gune jom pasang ichos digring gozuk che se jalta jibing mana phalangai rewa tyochin goma I songs pasang goma I taldik pe nanga manyung azuk shiglu sadole ngata jalta chenmo chun dik yu midik pajta biglu sado innang yu ngaje goma shaska jakse singate stondu jinpin yongcha shane tus gunina nija gune tene spaspe gun khurte tene ngadang dulche singai sambarin rewain tukje chejun nija samala yangskya shkoches pa tukje che chon palex julai हमें ना ये साथ में रखना चाहिए और यहाँ पे जैसे कि हमने कहा था कि वेलकम में जो है ना शोभा कैसे मोमेंटम मोमेंटम का बुक मेरे पास है क्योंकि ये जो लद्दाखी इसमें ये मैं बोल दूँगी ये मोमेंटम का भी द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल पहली बार ये इस फेस्टिवल इस महोत्सव का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है लद्दाख में लद्दाख के निवासी तो है ही हैं लेकिन लद्दाख से बाहर जितने भी हमारे अतिथिगण यहाँ पधारे हैं अलग अलग स्टेट से हिमालयन स्टेट से हमारे फिल्म मेकर्स हो चाहे वो फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़े जितने भी हमारे शख्सियत है आप सभी लोगों को हम जुले के साथ स्वागत करना चाहेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लद्दाख में पहली बार हैं जैसे कि मेरी को होस्ट है सोनिया शीज कम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली और उनको यही लगता था कि लद्दाख इन्होंने सिर्फ मूवीज में देखा है स्क्रीन में देखा है जब ये आई थी लाइक शी एक्चुअली आस्क्ड मी टू पिंच हर कि आई एम इन लद्दाख करके सो आई डिड पिंच हर सो यस आई एम हैविंग ग्रेट टाइम हियर मैंने कल जब मैं यहाँ पर पहुंची थी तो मैंने सिंधन से कहा था कि सीरियसली आई वांटेड टू सी लद्दाख एटलीस्ट वंस इन माय लाइफ एंड आई एम हियर माय ड्रीम हैज कम ट्रू एंड आई थिंक ये सिर्फ मेरी ही ड्रीम डेस्टिनेशन नहीं आई थिंक
मोस्ट ऑफ द इंडियंस एंड वर्ल्ड में बहुत सारे लोग जो हैं उनका ड्रीम डेस्टिनेशन है कि जिंदगी में एक बार लेह लद्दाख तो जाना ही है. सो फाइनली वी आर हियर एंड आई एम सो हैप्पी फॉर द कॉज आई एम हियर. इस बहुत ही खूबसूरत से इवेंट को होस्ट करने के लिए विद सच अ ब्यूटीफुल को होस्ट. आई कांट आस्क फॉर एनी बेटर को होस्ट देन Tenzin, and she's helping me out a lot since yesterday. एंड आई थिंक आज का ये जो हमारा हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल जो होने जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आज इस शाम को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं. और एक नया, एक मैं कहना चाहूंगी कि ये एक हिस्टोरिक इवेंट है, बिकॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग. एंड मुझे लगता है कि ये इवेंट और भी बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है अगर आपका सपोर्ट हमें मिले. तो अगर जोरदार तालियां आपकी तरफ से हो जाए तो we'll get to know that you all are part of this evening. थैंक यू, बहुत अच्छा लगा. बट मुझे लगता है कि जितनी खूबसूरती है लेह लद्दाख में, एनर्जी उस हिसाब से थोड़ा सा डाउन है. ऐसा क्यों टेंजिन? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी माहौल थोड़ा सा गर्म जैसा हो रहा है. इट्स जस्ट लाइक वी आर जस्ट वार्मिंग अप थिंग्स. और जैसे जैसे हमारे गेस्ट डिग्निटरीज जो स्टेज पे आते जाएंगे, वैसे वैसे माहौल जो है और ज्यादा डेक्टअप होता जाएगा. विल बी मोर रेडी एंड टुवर्ड्स द एंड ज्यादा हो जाएगा, सीटियां बजेगी जब हम शेरशाह मूवी जो है स्क्रीन करेंगे. एग्जैक्टली. और शेरशाह जो कि शूट भी इसी टेरिटरी के अंदर हुई है, कारगिल में, लेह लद्दाख में, हमारे हिमालय के अंदर हुई है ये शूटिंग. और बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस एंड व्हाट अ फिल्म. आई जस्ट एंजॉयड, आई सॉ दैट फिल्म एंड टुडे अगेन आई एम सो एक्साइटेड कि यहाँ पर आप सबके साथ बैठकर वो फिल्म, और स्पेशली जो हमारी स्टार कास्ट है, हमारे डायरेक्टर हैं, उनके साथ बैठकर फिल्म देखने का हमें मौका मिल रहा है. आई एम सो एक्साइटेड फॉर ऑल दिस. एंड आई मस्ट टेल यू सोनिया, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग मेरे इस बात से सहमत करेंगे कि यूं तो हमारे फिल्म मेकर्स जो है काफी सारे वो है टैलेंटेड है. बाहर से जो लोग आए हैं उनको पहले बहुत सारा ट्रेनिंग लेते हैं, दे टेक कोर्सेज, सीखते हैं यहाँ वेटरन से लेकर. लेकिन हमारे लद्दाख की खासियत ये है, लद्दाखियों प्लीज सुनिएगा मेरी बात, लद्दाखवासी जितने भी हमारे फिल्म मेकर्स हैं, चाहे वो डायरेक्शन में हो, चाहे वो एक्टिंग में हो, सिंगिंग में हो, राइटिंग में हो, they are all made themselves. They are self-made actors, directors and everything. तो मेरे ख्याल से लद्दाखियों, लद्दाखवासियों, अपने लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि हमारे जो फिल्म मेकर्स है, सिंगर्स है, राइटर्स है, we are all self-made. Thanks to the fabulous ancestors that we had, जिन्होंने हमें ये सिखाया. और हमारे पेरेंट्स जो हमें बचपन से ये सीख देते हैं कि भाई देख लो, सेल्फ मेड जो होता है वो बहुत लंबा चलता है. एंड यू शुड always be dependent on yourself rather being dependent on others. Try to handle things on your own first before asking for help or something. So मेरे ख्याल से ये हमारे ancestors का आशीर्वाद कह सकते हैं, that we have such a wonderful fraternity. And एक चीज और, मतलब I come from Delhi. वैसे मैं आपको एक चीज, एक फैक्ट और बताऊं कि I am one of you because I basically belongs to Jammu and Kashmir. Oh, that's great. My home is Jammu and I can say that I relate to you people. And यहाँ पर आकर जब काम करना, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, हम लोग जब बाहर से आके यहाँ पर, जब मैं कल आई थी, इट वाज टू कोल्ड फॉर मी. और आप लोग यहाँ पे रहते हैं, वाकिफ है यहाँ के वेदर कंडीशंस, पर ठंड तो सबको लगती है. नहीं, आई डोंट अग्री विद यू, बिकॉज आपका दिल इतना वार्म है, इतना हार्टेड है, इतना वार्म हार्टेडली आप इसको करते हैं. आई डोंट थिंक यू वुड बी फीलिंग कोल्ड और समथिंग. एग्जैक्टली. एंड इतने खूबसूरत से माहौल में काम करने का मजा ही अलग होता है. आई नो, दैट इज ट्रू. I guess, Sonia, as far as I can see, we have most of our guests, they're already here. Why don't we let everyone please settle down? In the meanwhile, जब हम दोनों अपनी दोनों की तारीफ थोड़ी हो जाए तो रख देते हैं, थोड़ा सा विराम देते हैं. Exactly. And then we'll wait for the dignitaries to please reach the dais, and then we will begin with the program. And to other guests, I request, please make yourself comfortable on your seats, and we're going to take you to the drive of the Himalayan Film Festival for the very first time in Ladakh. Thank you. See you soon. Thank you so much.
Well, ladies and gentlemen, हमारे डिग्निटरीज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ना शुरू हो चुके हैं. सो मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियों के साथ अगर हम उनका वेलकम करें, स्वागत करें. A warm welcome to you all. सो एक बार फिर से नमस्कार, झूले. सबसे पहले तो आप सभी मेहमानों का इस पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल में हार्दिक अभिनंदन करती हूं. मैं आपकी आज की होस्ट सोनिया कौर और मेरे साथ स्टेंजन. A very warm welcome to all of you to the Himalayan Film Festival, ladies and gentlemen. लद्दाख के खूबसूरत पहाड़ और दिलकश नजारों ने बरसों बरस फिल्मकारों का अपनी तरफ ध्यान जो है वो खींचा है. हकीकत, लक्ष्य, 3 इडियट्स और हाल ही में रिलीज हुई शेरशाह जैसी फिल्मों में हम सब ने लद्दाख और हिमालय की शान को देखा भी और सराहा भी. आज इस पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल में दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ और दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री एक साथ एक मंच पर है और हमें पूरा यकीन है कि ये फिल्म फेस्टिवल लद्दाख की अनूठी कहानियां, लद्दाख की समृद्ध संस्कृति और लद्दाख के प्रतिभावान फिल्मकारों के लिए संभावनाओं और अवसरों के नए सुनहरे दरवाजे खोलेगा. हमें विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में हमें यहां लद्दाख और देश के अन्य हिमालयन भागों से आई फिल्मों और फिल्मकारों का अभूतपूर्व और रचनात्मक संगम देखने को मिलेगा. Over the next few days, ladies and gentlemen, along with great cinema, the festival will host workshops, master classes and in-conversation sessions to impart necessary skills and networking opportunities to budding as well as established filmmakers. और मुझे लगता है कि अब हम ज्यादा जो वक्त है वो जाया नहीं करेंगे और आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं हमारे मुख्य अतिथि, सूचना एवं प्रसारण, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह जी ठाकुर का स्वागत करती हूं जोरदार तालियों के साथ. प्लीज एवरीवन पुट योर हैंड्स अप टुगेदर टू वेलकम आवर चीफ गेस्ट. Ladies and gentlemen, Shri Anurag Singh Thakur is a dynamic and young parliamentarian. His tenure as sports minister has brought laurels to India at Olympics and Paralympics 2020 in Tokyo, Japan. और अब हम लद्दाख के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री राधा कृष्ण माथुर जी का स्वागत करते हैं हमारे बीच में. A former Indian Administrative Service officer, Shri Mathur ji is the first LG of Ladakh and retired as the Chief Information Commissioner of India in November 2018. A warm welcome to you, sir. Ladies and gentlemen, we have amongst us the Honorable Chairman, the Chief Executive Councillor of Ladakh Autonomous Hill Development Council, Leh, Mr. Tashi Gyaltsen. Advocate Tashi Gyaltsen is the Chairman and CEC of the 6th Ladakh Autonomous Hill Development Council, Leh. With a huge round of applause, we welcome to you too, sir. देवियों सज्जनों, लद्दाख से सांसद श्री जयमान सिंह नामग्याल जी को किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है. He, in 2018, was elected as the youngest Chief Executive Councillor of Ladakh Autonomous Hill Development Council, Leh, and of course, he is famous for his very impressive speech in Parliament. Welcome to you too, sir. We have amongst our dignitaries Mr. Umang Narula. He is a 1989 batch IAS officer and is appointed as the advisor of Ladakh. He holds the charge of Home and Finance Department, UT Ladakh. Welcome to you too, Narula, sir. Ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to announce that Ms. Padma Angmo, she is a 2002 batch IIS officer. She is posted as Secretary UT Ladakh and assigned the duties of Administrative Secretary of the Departments of Information, Election, Higher Education, ICDS and DGICPS, Technical and Skill Development. Welcome to you too, Padma ma'am.
और अब मैं जिनका स्वागत करने जा रही हूं उन्हें इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे ये काम दिया गया है, सो आई वुड लव टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारे बीच में एक बहुत ही खास शख्सियत जो है, एक बहुत ही महान फिल्म डायरेक्टर, एडिटर, फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर एंड एवरीथिंग ही इज। उनकी फिल्म्स हमें पिछले 50 सालों से बहुत ज्यादा एंटरटेन करती आई हैं और उनका योगदान जो है इस फिल्म इंडस्ट्री को एक नए लेवल पे लेके गया है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई सिंपली मीन्स टू से लेट्स वेलकम विदु विनोद चोपड़ा जी इन द हाउस। Huge round of applause. Ladies and gentlemen, we have amongst us Ms. Anupama Chopra, a celebrated author, journalist, film critic and director of the Mami Mumbai Film Festival. हम सुश्री अनुपमा चोपड़ा जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। One thing I would love to add here, Anupama ma'am, I'm great fan of yours. So am I. आपका हर इंटरव्यू मैंने देखा है, the way you interview people, I just love and I try to copy you sometimes. I don't know I can do that or not. I definitely can't match you, but you are fantastic. And now एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हमारे और भी बहुत खास गेस्ट हैं जो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा वक्त उन्हें और लगेगा, यानी कि हमारे शेरशाह के जो डायरेक्टर है विष्णु जी बहुत जल्द हमारे बीच में यहाँ पर होंगे और साथ में हमारे शेरशाह यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा भी बहुत जल्द हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। सो वी आर वेटिंग फॉर देम, बट द मीनवाइल हमारे जो डिग्निटरीज यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सो एक बार हम उनका फॉर्मली वेलकम करना चाहेंगे। Exactly. Now we would like to formally welcome the dignitaries sitting on the dais with their presentation of a shawl and memento. First of all, may I request the Honorable Lieutenant Governor, Union Territory of Ladakh, Shri Radhakrishna Mathur, to do the honors of welcoming the Honorable Minister, Shri Anurag Singh Thakur, with the presentation of a shawl and a memento. This magnificent handmade Ladakhi pot is called Soltib or Thago or Chadip, generally made of silver, copper, brass, etc. in different sizes and designs and are decorated with Ladakhi motifs symbolizing good omen. This pot is made of brass and this is used to serve beverages on important occasions. Right. Thank you so much, sir. Here I would like to now request the Honorable Minister, Mr. Anurag sir, to please do the honors of welcoming Mr. Vidu Vinod Chopra with the presentation of a shawl and a memento. Please everyone give them a big hand. So they especially took out time out of their busy schedules to be here. And their presence is of course gracing this evening, this gathering more. And now I would love to request Honorable Minister of Information and Broadcasting, Government of India, to kindly welcome our Honorable LG Ladakh, Shri Radha Krishna Mathur. So जैसे होस्ट जो हैं वो गेस्ट का वेलकम करते हैं, वैसे ही गेस्ट जो हैं वो भी होस्ट के घर आकर उनके परिवार का हिस्सा बन जाते हैं. So this is the live example, we can see that. Thank you so much. Thank you so much, sir. I will now request Honorable Chairman LSDC Lay, Advocate Tashi Galsanji, to please welcome Shri Vishnu Vardhan with a presentation of a shawl. He is not here at this moment, but I will request the Honorable MP to do the honors of welcoming Ms. Anupama Chopra. She's here.
थैंक यू सर, थैंक यू Thank you so मैम। much. और इसके बाद हमारे यहाँ की एक प्रथा जो है वो बहुत ही ज्यादा मशहूर है कि जब भी कोई अच्छा काम हम करते हैं तो हमें लाइट से, हम रोशनी से एक एनर्जी लेते हैं। वी थिंक दिस वे। सो अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर हम दीप प्रज्वलन करेंगे और इस शाम को एक खूबसूरत सी शुरुआत विद ऑल द पॉजिटिविटी। सो आई रिक्वेस्ट ऑल आवर डिग्निटरीज टू स्टेप फॉरवर्ड फॉर द लैम्प लाइटनिंग। Yes, for the formal inauguration of the very first, the Himalayan Film Festival, ladies and gentlemen, light signifies lighting, enlightenment, and dispelling darkness. And this is the moment declaring the inauguration of the first ever, the Himalayan Film Festival, ladies and gentlemen, being organized for the very first time here in Ladakh. और इसके साथ इस बीच में अगर आपकी तालियों का साथ हमें मिलता रहेगा तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि एक तो दीप जलेंगे एंड द वार्मथ ऑफ योर क्लैपिंग वुड मेक दिस इवनिंग मोर वार्मर एंड मोर अमेजिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिल्म फेस्टिवल में जो है हमारे डिग्निटरीज यहाँ पे मौजूद है। एज यू कैन सी, दिस इज अ ब्यूटीफुल ओपनिंग इनॉग्रेशन ऑफ द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से आप सभी से जोरदार तालियों की मैं गुजारिश करना चाहूंगी फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल। एंड आई गेस थ्रू आउट तालियां बजती रहनी चाहिए। और ये द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का पहला स्टेप है और हम आशा करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आने वाला 5 दिन जो है वो सक्सेसफुल रहे और आने वाले समय के लिए ये पहली सीढ़ी बने। थैंक यू सो मच टू ऑल द डिग्निटरीज। थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो अब दीप प्रज्वलित हो चुके हैं और ये इस बात का प्रमाण है कि इस शाम को अब आगे बढ़ाया जाए। Right. And with that, I would like to request the Secretary Information UT Ladakh, Ms. Padma Angmo, to deliver the welcome address. Give her a big hand, ladies and gentlemen. Hello. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's with a great deal of happiness that I welcome you all to the first ever Himalayan Film Festival, a carnival of cinema from the 12 Himalayan states and union territories. It's my pleasure to welcome the chief guest of the evening, Honorable Minister of Information and Broadcasting, Sports and Youth Affairs, Shri Anurag Thakurji. So without the support from the Ministry of Information and Broadcasting and the Directorate of Film Festival, it would not have been possible for us to put up the festival at this scale. Also, sir, you belong to Himachal Pradesh, so you have another connect with this festival, which has specifically been curated to showcase talent from the Himalayan region. My warmest regards and welcome to the Honorable Lieutenant Governor of Ladakh, Shri Mathurji, who has been a mentor and a guide
through the process of evolving a platform and opportunity for the filmmakers of Ladakh. An opportunity where the filmmakers showcase their talent and further hone their skills so that they are able to create a thriving film industry in Ladakh. With great enthusiasm, I welcome renowned producer, director, editor, writer, actor, Vidhu Vinod Chopra ji, and noted film critic, author and journalist, Anupama Chopra to the event. I had sent a WhatsApp message to Anupama ji to invite, and the affirmation message that I got was instant, which was such a pleasant surprise for me. This indicates their love for Ladakh, for the place and people of Ladakh, and we heartily welcome you. We eagerly look forward to the in-conversation session with both of you. The festival is being held under the theme of Azadi Ka Amrit Mahotsav to celebrate the 75 years of independence of India. In this spirit, we pay tribute to our defense forces by opening the festival with the film Sher Shah. I welcome the Honorable Chief Executive Councillor, Ladakh Autonomous Hill Development Council, Leh, Advocate Tashi Gyaltsen ji, who has taken a keen interest in all aspects of the festival, which is being organized in close collaboration with LAHDC Leh. I welcome the Honorable Member of Parliament of Ladakh, Shri Jamyang Singh Namgyal, to the inaugural event and request him to grace the venue in coming days too, as he brings with him the star quotient, which is crucial for the success of a film festival. I welcome Shri Umang Narula ji, the advisor to the Honorable Governor, who has been guiding the Department of Information in all aspects of organizing this event, right from deciding the major components of the festival down to the small details of the program. I take this opportunity to welcome the Ladakh veterans from the field of films and performing arts, who have kept the art alive and thriving despite many challenges. I welcome the jury for Himalayan Film Festival and directors of the films that we are screening in the course of next 4 days. I welcome Director General Doordarshan, and I'm happy to tell everyone that the inaugural function is being telecast live on Doordarshan channels of all Himalayan states. Please come on stage. It's with great pleasure that I welcome Siddharth Malhotra, the star of this glittering evening. जोरदार तालियों के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा का हम स्वागत करेंगे. A loudest round of applause for the heartthrob Siddharth Malhotra amongst us. And with that, we have Vishnu Vardhan ji, director of Sher Shah, here with us. Zordar taaliyon ke saath, please everyone, welcome them. It's with great pleasure that I again welcome Siddharth Malhotra ji, the star in this glittering evening. He has been to Ladakh, shot in the icy heights of Kargil, and has won accolades for a performance of a lifetime. And we thank you for making it again to Ladakh to grace the festival. I welcome the director of Sher Shah, Vishnu Vardhan, and the cast and crew who are here today. Special welcome to Amazon India team, who bring with them Sher Shah and the permission to screen the film in the festival. Ladies and gentlemen, this is the first time that a film would be seen on the big screen. As I was saying, I take this opportunity to welcome the Ladakh veterans from the field of films and performing arts who have kept the art alive and thriving despite many challenges. I welcome the jury of the Himalayan Film Festival and the directors of the film that we are screening in the course of next 4 days. I welcome Director General Doordarshan, and I'm happy to tell everyone that the inaugural function is being telecast live on Doordarshan channels in the Himalayan states. A warm welcome to Director General All India Radio, Director Films and Television Institute of India, Joint Director Bureau of Outreach and Communication, and other dignitaries from Delhi who have honored us with this gracious presence. I welcome the senior officials from the UT Secretariat and District Administration, Honorable Councils of LAHDC of Leh and Kargil, the dignitaries from the armed forces, and our esteemed guests. My warm welcome to the media, who will be our most vital partners in taking the festival far and wide. There's a film lover in all of us, and similarly I think there's a filmmaker also in all of us. I finally welcome the filmmaker and film lover in all of us to this inaugural function, and look forward to hosting all of you in the next 4 days in the Himalayan Film Festival. Thank you, and Jule. Thank you, ma'am. Thank you so very much.
And now, as we have already welcomed Vishnu Vardhanji, the director of Shersha, and Siddharth Malhotra, the star, here with us, actual Shersha, I would say. And but we have given the job to welcome them formally, so I would love to take this opportunity. So, ladies and gentlemen, Vishnu Vardhanji, an eminent film director with vast experience in filmmaking in different languages, and of course, he had directed the latest super hit film, which you all loved, and today we all going to watch them together. None other than one and only Vishnu Vardhanji. A warm welcome once again on behalf of the Himalayan Film Festival and each one of the person who is present here tonight. Thank you. And to formally welcome him, I'll request now the Honorable Chairman, LHDC Advocate Tashi Gelson, to please present a shawl and a memento welcoming Vishnu Vardhanji. Thank you so much, Vishnuji, for giving us this beautiful movie and honoring the supreme sacrifice by the very own hero in his real life. Thank you so much. And of course, since we have the heartthrob, and at present he's having the major female fan following, the young, talented and handsome Mr. Siddharth Malhotra. Here I would like to request the Honorable Minister, Information and Broadcasting Government of India, Mr. Anurag Singh Thakurji, to do the honors of welcoming Siddharth Malhotra formally with the presentation of a shawl and a memento. And I must tell that the magnificent handmade Ladakhi pot is called Soltip or Tagu or Jatip. Generally, this is made of silver, copper, brass, etc. in different sizes and designs and are decorated with Ladakhi motifs symbolizing good omen. This pot is made of brass and this is used to serve beverages on important occasions. Welcome, Siddharthi. And thank you, sir. Thank you so much. And now finally, ladies and gentlemen, जो अब वक्त आ चुका है, the Himalayan Film Festival. जो reason है हम सब यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और एक बेहतरीन तरीके से द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का पोस्टर लॉन्च होने जा रहा है आप सबके बीच में. एंड फॉर दैट मैं गुजारिश करना चाहूंगी टू आवर ऑनरेबल I&B Minister Shri Anurag Singh Thakur and Honorable LG Ladakh Shri Radhakrishna Mathur to do the honor. And I also request Ms. Neha Jalali, Joint Director, Regional Outreach Bureau, J&K and Ladakh MIB to join us on stage for the launch. So ladies and gentlemen, finally the time for the launch of the Himalayan Film Festival poster by our dignitaries. The Himalayan Film Festival ka poster. Carnival, ladies and gentlemen. Here we have the team. A huge round of applause because this is the first step towards a long journey. I still can't hear taaliyon ki awaaz properly. All the people sitting in the back. Please everyone, join us in this celebration which is happening right now. It's a historical event. Thank you so much. Since we have the request from the Honorable Minister, we will proceed with the proceedings, and they're also engaged in something. They're going to make it memorable, more memorable with their own signatures. That is a fantastic idea. Thank you so much. In between here, I would like to request the
young and dynamic, very talented representative of people of Ladakh, the Member Parliament of Ladakh, Shri Jamyang Singh Namgyal, for his address. Ladies and gentlemen, जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए श्री जामयांग सिंह नामग्याल, माननीय सांसद लद्दाख के. Over to you, sir. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. हम सब के लिए एक गौरवशाली अवसर जिसको मैं मानता हूं, द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल पहली बार लद्दाख के इस पहाड़ी क्षेत्र में हो रहा है और जिस मौके पर पूरे लद्दाख वासियों की ओर से मैं हम सबके पूरे भारतवर्ष के खासकर युवा पीढ़ियों के जो सबसे लोकप्रिय माननीय मंत्री आदरणीय मेरे बड़े भाई श्रीमान अनुराग सिंह जी ठाकुर का लद्दाख में एक बार फिर से स्वागत करते हुए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं. मैं इसलिए सौभाग्यशाली मानता हूं क्योंकि अब केवल देश के माननीय मंत्री ही नहीं बल्कि पूरे हिमालयन स्टेट का एक आवाज भी है. और लद्दाख के पड़ोसी पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश से आप आते हैं तो लद्दाख के बारे में जानकारी देने के लिए मुझे आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं समझता हूं, क्योंकि आप लद्दाख बार बार आते रहते हैं और यहां के खासकर युवा पीढ़ी से और विशेष रूप से खेल से रुचि रखने वालों के संबंध में हमेशा संपर्क में आप रहते हैं. और ये आपका भारत सरकार में मंत्रिमंडल में जिम्मेवारी लेने के बाद तीसरी बार आप लद्दाख आ रहे हैं. इस उपलक्ष्य पे पूरे लद्दाख वासियों की ओर से मैं आपको हृदय से विनम्रतापूर्वक स्वागत करता हूं झूले के साथ. मंच पे विराजमान श्रीमान राधा कृष्ण माथुर जी, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल महोदय, आपके गाइडेंस में, आपके लीडरशिप में आज लद्दाख पिछले 2 साल में बहुत आगे बढ़ चुके हैं. इस बात के हम सबको फख्र महसूस करते हैं और गर्व महसूस भी करते हैं, क्योंकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद केवल लद्दाख वासियों ने ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश वालों ने भी देखा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लीडरशिप में, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के लीडरशिप में, उनके मार्गदर्शन में, यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के मेहनत से लद्दाख ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिया, चाहे टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए हो, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हो, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हो, या खेल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर फील्ड में लद्दाख आज बहुत तरक्की कर रहा है. मैं इस चीज के लिए पूरे लद्दाख वासियों की ओर से माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं. मंच पे विराजमान आज के हमारे इस फिल्म फेस्टिवल के जो विशेष अतिथिगण श्री विनोद विदु चोपड़ा जी, सिद्धार्थ मल्होत्रा जी, विष्णु वर्धन जी, अनुपमा जी, आप सबको पूरे लद्दाख वासियों की ओर से बहुत बहुत झूले के साथ स्वागत करता हूं. लद्दाख लेह डिस्ट्रिक्ट में ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के हमारे ऑनरेबल चेयरमैन श्री ताशी ग्याल्सन साहब, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं पूरे लद्दाख वासियों की ओर से, क्योंकि आज से 1 साल पहले फिल्म फेस्टिवल करने के चर्चा आपसे मुझे करने का जो अवसर मिला और जिस कंसेप्ट को मैच्योर होते हुए इस स्टेज तक लाने के प्रयास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ने
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सहयोग से किया, इस चीज के लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप सबके लीडरशिप की वजह से आज ये सपना हमारे सामने साकार होते हुए देख रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे एडवाइजर टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री उमंग नेरुला जी, आपकी लीडरशिप में सभी कमिश्नर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज, डिविजनल कमिश्नर, यहां के सभी अधिकारीगण ने इस चीज में बहुत सारे योगदान दिया है, कंट्रीब्यूट किया है लद्दाख को आगे ले जाने के लिए। और यहां पे उपस्थित सभी मेहमानगान को मैं पूरे लद्दाख वासियों की ओर से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं हर एक के नाम नहीं ले पाऊंगा, क्षमा चाहूंगा, क्योंकि समय के सीमा को ध्यान में रखते हुए आजादी के अमृत महोत्सव जो देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश को आह्वान किया 75वीं वर्ष मनाते हुए, और इस आजादी के अमृत महोत्सव पे ये लद्दाख में द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, जिसमें पूरे 12 हिमालयन स्टेट्स के अलग अलग फिल्म के साथ ही साथ और देश के स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने से लेके फ्रीडम फाइटर जिसको हम कहते हैं, लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर के साथ एक प्रिंसली स्टेट तो था, लेकिन लद्दाख से भी एक फ्रीडम फाइटर श्री अब्दुल सत्तार जी के नाम से आते हैं, तो वो मैं समझता हूं पूरे लद्दाख को रिप्रेजेंट करते हुए अब्दुल सत्तार जी ने इस आजादी के अमृत महोत्सव मनाने के लिए हम सबको एक गौरवशाली समय का जो प्रकट किया, मैं इस चीज के लिए भी पूरे लद्दाख वासियों की ओर से आभार प्रकट करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं इस तरह की एक्टिविटीज की कितना महत्व है, पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लद्दाख को अलग अलग फील्ड में हमने आगे ले जाना है। यहां की युवा पीढ़ियों को, पूरे देश की युवा पीढ़ियों के साथ कंधे से कंधा मिला के 21st सेंचुरी में जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है आधुनिक चीजों के, शिक्षा के साथ साथ रोजगार में, और केवल रोजगार की नहीं बल्कि आधुनिक चीजों के साथ साथ फिल्म का कितना महत्व हमारे जिंदगी में है। और इस फिल्म फेस्टिवल को यहां करने के बाद मुझे पूरा विश्वास है, चाहे लद्दाख की युवा पीढ़ी कंटेंट डेवलप करने में हो, स्क्रिप्ट राइट करने में हो, शूटिंग और स्क्रीनिंग में हो, फिल्म प्रोडक्शन में हो, हर क्षेत्र में हमारी युवा पीढ़ी देश के साथ कंधे से कंधा मिलके आगे बढ़ने का अवसर जो है जरूर मिलेंगे। मैं इस चीज के लिए भी आभार प्रकट करना चाहूंगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को पूरा सहयोग देके, सपोर्ट देके, गाइडेंस देके भारत सरकार ने हमें यहां तक लाने के जो काम किया, इस चीज के लिए पूरा लद्दाख वासी हमेशा आभारी रहेंगे। माननीय मंत्री जी, आपके पास खेल और युवा के जिम्मेवारी भी है। मैं यहां समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा उस मुद्दों को लेके, खेल के हो, युवा पीढ़ी से संबंधित हो, दूरदर्शन से संबंधित हो, रेडियो स्टेशन से संबंधित हो, बहुत सारी चीजें मुझे बताने के लिए है। मैं आपसे अलग समय लेके, मैं यहां के समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आपको मैं अलग से बैठ के वो सारा मैं आपसे अलग से चर्चा करना चाहूंगा। मैं यहां पे एक बार फिर से पूरे लद्दाख वासियों की ओर से आप सबको आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you so much, Honorable Member Parliament, Shri Jamal Singh Namgyal। और अब मैं गुजारिश करना चाहूंगी the Honorable Chairman, Chief Executive Councillor, Ladakh Autonomous Hill Development Council, Leh, Advocate Tashi Gyaltsen for his address. Shri Tashi Gyaltsen ji. मंच पे विराजमान आज के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी श्री अनुराग ठाकुर जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी लद्दाख श्री आर के माथुर जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जामिया सिंह नमग्याल साहब, आज की इस सभा में उपस्थित हमारे स्पेशल गेस्ट बॉलीवुड के
भारत के मशहूर फिल्म स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा जी, फेमस डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर विनोद चोपड़ा जी, विष्णु साहब, अनुपमा जी, ऑनरेबल एडवाइजर टू एलजी, कमिश्नर सेक्रेटरी पद्मा मैडम और उनके साथी, my colleagues in the Hill Council, executive councillors, बाहर से आए हुए और यहाँ के लोकल फिल्म फ्रेटर्निटी के भाई बंधु, यहाँ पे मौजूद मेहमान, आप सबका जूले। जैसे कि अभी हमारे माननीय संसद जी ने कहा है कि लद्दाख में जो है फिल्म फेस्टिवल करने का चर्चा पिछले सालों से हो रहा है और ये चर्चा करने का मकसद यही था कि जो यहाँ के युवाओं को, जिनके अंदर एक भरपूर एक टैलेंट से भरा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो टैलेंट दिखा नहीं पा रहा है, दबे हुए हैं, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स इश्यूज हो रहा है। क्योंकि एक तो लद्दाख को केंद्रीय शासित प्रदेश बनने से पहले की बात है कि यहाँ के जो सपने पूरा करने में जो है बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ता था। लद्दाख एक दुर्गम क्षेत्र होने के कारण जो यहाँ का इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो काफी नीचे है और इनकम डिस्पैरिटी काफी है। तो यहाँ के युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था, क्योंकि नॉट एवरीवन वाज फॉर्चुनेट एनफ टू गो आउटसाइड फ्रॉम लद्दाख। और लद्दाख के अंदर इस प्रकार के पोटेंशियल नहीं होने के कारण वो अपने कला को जो है कहीं ना कहीं खो देता था। बट थैंकफुली हमारे कुछ ऐसे भी स्टार हैं, ऐसे भी सितारे हैं, ऐसे भी हमारे सीनियर्स लोग हैं जिन्होंने अपने बलबूते पे जो है बहुत सारे चीजें यहां पे किए, बहुत सारे कोशिशें किए, यहां पे लोकल्स मूवीज बनाए, यहां के टैलेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया और जितना हो सके थोड़ा बहुत जो प्लेटफॉर्म जो दे पाता था वो देने की कोशिश किया। मैं उन सभी लोगों का who have been fortunate enough to go out of लद्दाख और अच्छे जगहों पे जाके आप लोगों ने काम किया। बहुत सारे लोग हमारे एनएसडी पास आउट है, बहुत सारे एफटीआई में ग्रेजुएट होके जो है आए, बहुत सारे जो है अदर फिल्म इंस्टीट्यूट में जाके जो है ट्रेनिंग लेके आए और एवरीबॉडी केम बैक टू ले। और सभी ने जो है यहाँ के लोगों को जो है यहाँ के सोसाइटी को, यहाँ के युवाओं को अपलिफ्ट करने का एक प्रयास किया है, एक कंट्रीब्यूशन किया है। लेकिन रिसोर्सेज नहीं था, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट बहुत होता था, तो उसके कारण भी जो है हम अपना मनचाहा जो है यहाँ के लोगों को एक स्टेज हम दे नहीं पा रहा था। बट थैंक्स टू माननीय प्रधानमंत्री जी कि उनके कारण जो है जब से लद्दाख केंद्रीय शासित प्रदेश बना है उसके बाद से जो है यहाँ के सपनों को पूरा करने में जो है कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं आया है, कोई दिक्कतें नहीं आया है। हम खुले दिलों से जो है अपना मन चाहा जो है सपना आज हम साकार कर पा रहे हैं। तो ये उसी केंद्रीय शासित प्रदेश बनने का और उसके फायदा का
एक नतीजा आज का इस फिल्म फेस्टिवल का भी जो ये आयोजन, जो पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल जो लद्दाख में किया है, वो उसका एक कारण है। मैं माननीय एलजी साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा, यूटी प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने भी जो है कोई कसर नहीं छोड़ा यहां के लोगों के सपना को पूरा करने में। जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख के प्रति देखा था और जिस सपने को साकार करने के लिए जो है उन्होंने जो निर्देश दिया था, उसका पालन करते हुए हमारे ऑनरेबल एलजी साहब, हमारे यूटी प्रशासन के लोग जो है आज हर दिन हर रात जो है यहां के लोगों को इस सपना को पूरा करने में अपना समय दे रहा है। तो आज मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि हम हमेशा से सोचते थे कि इतने टैलेंट्स की यहां पे कभी कमी नहीं थी, अभी भी कमी नहीं है। एक से एक लोगों ने जो है जिनको अपॉर्चुनिटी मिला वो बाहर जाके उन्होंने सफलता के साथ जो है अपने आप को प्रूफ किया है। और बहुत सारे ऐसे टैलेंट है जिनको मौका नहीं मिला था, लेकिन उनको मौका मिलने की भी बहुत जरूरत था। और ये बीते हुए 2 साल के अंदर हमने देखा बहुत सारे ऐसे हिडन टैलेंट को जो है एक से एक जो है अपने टैलेंट को आगे लेने में जो है उनको एक स्टेज मिला, चाहे वो बीते हुए दिनों में विंटर कॉन्क्लेव के द्वारा हो। और मैं सबसे पहले तो मैं आपके जो बॉलीवुड के जो फिल्म फैटर्निटी के लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो है एक तो एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तौर पे जो है, क्योंकि मैंने जब भी लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, चाहे वो राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी के साथ हो और या किसी भी अच्छे डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ जब भी मौका मिला उनसे इंटरेक्शन करने का, तो उन्होंने सभी ने यही बताया कि हम जो है लद्दाख ने जो है हमें बहुत कुछ दिया है। वी वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग बैक, वी वॉन्ट टू गिव समथिंग बैक। तो उसके चलते हुए जो है पिछले जो हमारे जो ये लिटरेचर जो फेस्टिवल हुआ था, उन्होंने वहां पे जो है एक एक दिन नहीं 2-2 दिन के लिए जो है वहां यहाँ के युवाओं को जो है एक जो है मास्टर क्लास के द्वारा जो है एक शॉर्ट टर्म जो है यहाँ पे ट्रेनिंग कराया गया, जिसके कारण जो है जो मैंने खुद महसूस किया, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग, कि हमारे जो जिस दिन ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था तो टैलेंट तो बहुत था, कहने को हमारे लोगों में बहुत कुछ था, लेकिन वो खुल नहीं पा रहा था। लेकिन जब दूसरे दिन जब उनके साथ हमने इंटरेक्शन किया तो मेरे ख्याल से उनमें कोई दूसरा एक रूप हमको देखने को मिला। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह के फिल्म फेस्टिवल के द्वारा जो है यहाँ के लोगों को आगे बढ़ने का जो मौका नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से इससे बड़ा प्लेटफॉर्म, इससे बड़ा जो एक अपॉर्चुनिटी जो है हमारे यंग जो फिल्म मेकर्स है, जो फिल्म इंडस्ट्री में भी जो है अपना नाम कमाना चाहता है, नॉट ओनली इन फिल्म मेकिंग, मेरे ख्याल से जो है इस प्रकार के फिल्म इंडस्ट्री में जो है बहुत सारे और भी पोटेंशियल है। जैसे हम लाइटिंग का भी इसमें बहुत सारे स्कोप्स होते हैं, लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी का, इनफैक्ट जो है उसमें साउंड्स का हो, साउंड के रिलेटेड हो, इवन कोरियोग्राफी में भी जो है बहुत सारी चीजों का पोटेंशियल रहता है। तो मेरे ख्याल से इस प्रकार के प्लेटफॉर्म देने से एक जो एम्प्लॉयमेंट का भी जो एक क्राइसिस जो अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि हर किसी को तो सरकारी नौकरी हम नहीं दे सकते हैं, तो लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से कहा है आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट बनना है और जो है वोकल फॉर लोकल। तो उस प्रकार से जो है इस प्रकार का अगर प्लेटफॉर्म देगा तो मेरे ख्याल से हमारे युवा जो है नॉट ओनली जॉब सीकर बट दे विल बिकम अ जॉब गिवर इन द कमिंग डेज। तो मुझे पूरा उम्मीद है और इसी के चलते हुए इसी के फॉलो अप में मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहूंगा, खासकर माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हमने भी जो है अभी जैसे हमारे युवाओं में कुछ ऐसे युवा है जो अच्छे और भी कलाकार है, जो नाचना जानता है अच्छी तरह से, जो अपना एक कोरियोग्राफी में भी शौकीन रखते हैं, तो हमने भी जो है अभी उनको और भी स्टेज देने के लिए अभी हम अक्टूबर में इसी के फॉलो अप में जो है यहाँ पे एक डांस और म्यूजिकल फेस्टिवल भी होने जा रहा है, जिसमें जो है जो नाच गाने के साथ शौकीन रखते हैं। तो हमारा एक कंटिन्यू एक प्रोसेस रहा है, एक कैंपेन रहा है कि युवाओं को जो है इस प्रकार के चीजों में आगे आना चाहिए, अपना एनर्जी जो है ऐसे खूबसूरत चीजों में वेस्ट करना देना चाहिए, ना कि एक बुरे चीजों में हम जो है अक्सर वेस्ट करते हैं। तो इस प्रकार का हमारा पूरा मानना है
मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर, यहाँ के युवाओं में बहुत टैलेंट है, आप बखूबी से जानते हैं सर, और इतना पोटेंशियल है, एक से एक लोगों ने नाम किया है, और बावजूद किसी सहारे के जो है, अभी मैं अगर एक का भी मिसाल ले लूं, जो शेफर्ड जो वो उसका जो मूवी जो बनाया है हमारे संजिन ग्या जी ने, इन्होंने जो है एक से एक जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो है अपने मूवी को शोकेस करके बहुत सारे नाम कमाया है। तो इस प्रकार का बहुत सारे टैलेंट है। तो मैं चाहता हूं सर, यहां पे जो है एक फिल्म इंस्टीट्यूट का जो है निर्माण होना चाहिए, बहुत बड़े स्तर पे नहीं तो बट एटलीस्ट जो है छोटे स्तर पे अगर एक यहाँ पे फिल्म इंस्टीट्यूट बन सकता है तो। और साथ ही साथ सर, मैं एक चीज आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो FTII में जो है, अगर जो है यहाँ के बच्चों के लिए कुछ रिजर्वेशन अगर मिल पाता है, सीट्स का कोई रिजर्वेशन मिलता है, या स्कॉलरशिप्स का कुछ अगर स्कीम्स अगर दिया जा सकता है, तो मेरे ख्याल से जो उसके यहाँ के युवाओं को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, बट देन सिंस आई एम रिप्रेजेंटिंग द पीपल हियर, तो आई थॉट जो है आई शेयर एवरीथिंग इन डेप्थ एंड पुट फोर्थ बिफोर एवरीवन। तो मैं साथ ही साथ ज्यादा ना कहते हुए मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि इस पूरे फिल्म फेस्टिवल को साकार करने के लिए जो है हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर छोस्पेल जी का बहुत बड़ा एक रोल रहा है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। हमारे काउंसलर टिनले साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है, और साथ ही साथ मैं हमारे सबसे पहले तो हमारे सेक्रेटरी मैडम पद्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने जो है इस फिल्म फेस्टिवल को सक्सेस बनाने के लिए जो है आपने जो रात दिन मेहनत करके आपने जो है बहुत बखूबी से जो है आपने समय दे के जो है इस फिल्म फेस्टिवल को साकार किया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और साथ ही साथ आपके साथ जुड़े हुए सभी जो हमारे जो आपके जो पूरे टीम को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो है एक अच्छे कलेक्टिव एफर्ट के साथ जो है इसको यहाँ पे साकार करने के लिए आप सबका धन्यवाद। और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस यही दुआ करूंगा कि आने वाले दिनों में जो है ये जो हिमालयन फिल्म फेस्टिवल जो लद्दाख में हो रहा है, वो आने वाले दिनों में जो है one of the best film festival to be participate in the futures in the years to come। इसी गुड विशेष के साथ एक बार मैं फिर से जो है आप सभी का, खासकर जो हमारे मेहमान जो इतने दूर से आए हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जुले, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। और इसके बाद वक्त हो चुका है इस शाम को आगे बढ़ाने का। लेडीज एंड जेंटलमैन, द टाइम टू फेलिसिटेट आवर ज्यूरी मेंबर। हमारे जो ज्यूरी मेंबर हैं हु अग्री टू बी पार्ट ऑफ द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल ऑन अ रिक्वेस्ट, और बहुत दूर दूर से वो आज इस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने वक्त निकाला है। सो एज वी हैव अ डिग्निटरीज ऑन द डायस, so let's start the felicitation process. And for the first, I would love to welcome multiple international and national award winner, Assamese filmmaker and short story writer Manju Bora, who has kindly accepted to be festival's jury member. I request you, ma'am, to join us on stage. And I request the Honorable Minister, Information Broadcasting, Government of India, Mr. Anurag Singh Thakur ji, and Honorable Lieutenant Governor Shri Radhakrishna Mathur ji to please felicitate them, our juries. Yes, sir. They are coming. All right, sir. We would also like to welcome our next jury member, filmmaker Raja Shabir Khan, who is known for the film Shepherds of Paradise, which won 2 national awards in the category of Best Non-Feature Film and Best Cinematography under 60th National Film Awards. And with that, our third jury member, we also welcome veteran Malayalam filmmaker and jury member GP Vijay Kumar, who is also the current president of the Kerala Film Chamber. We request you to join us on stage, sir. Congratulations and thank you, ma'am. Manju Bora ji. Raja Shabir Khan. Thank you, sir. Thank you so much.
And now GP Vijay Kumar ji. Congratulations and thank you so very much for being here with us. And thank you so much for accepting our proposal for being the jury. Thank you so much, and thank you so much to you, sir. Thank you. And now, yes, of course, I would like to request the Honorable Lieutenant Governor, Union Territory of Ladakh, Shri Radhakrishnan Mathur, for his address. Ladies and gentlemen, zordar taaliyon ke saath, Please everyone put your hands up together. Deputy Governor Shri Radhakrishnan Mathur First ji. LG Ladakh. Jule, Salam, Namaskar, good afternoon. First of all, let me give my heartfelt gratitude to Honorable Minister Anurag Thakur ji for agreeing to my request and being present here. This has given us so much of strength and so much of power to think and do many more things. I welcome everybody present here on the dais, Vishnu ji, Anupma ji, our Honorable Chief Executive Councillor, Vidhu ji, Honorable MP Sahab, Advisor Sahab, Madam Padma, all the jury members, all the distinguished filmmakers of Ladakh itself, and the film lovers who are present here. Firstly, why Himalayan Film Festival? This is a thought which actually originated, I would say, within the Ladakh Council, in the Leh Council, and the Executive Council members who was mentioned here, Mr. Chosfil. And we thought we'll make it bigger, we'll involve everybody. So I must thank Honorable CEC for thinking of this and making it possible. Himalaya is, I would say in some senses, the soul of India. The three rivers, Ganga, the Brahmaputra, the Indus, they originate from Himalayas. If you read Kalidas and Kumar Sambhav, the first poem there, the first verse there, alludes to Himalayas. Himalaya is the region which determines the monsoons for this country. It is also the spiritual capital, where you would always read that if a person has to do meditation, he goes to Himalayas. So Himalaya, the cultural heart, the spiritual heart, even the climatic heart of the country. And 12 states of Himalayas, they need to be looked at, they need to be heard, they need to be appreciated. I would say that having come to Ladakh, that this is the first time I saw a large number of talented young men who are making films, who are doing photography, who are doing wildlife photography, who are making heritage-related things, but not heard, not listened to in the rest of the country. How do you do that? And as a civilization, Ladakh, for the first time in last 20-30 years, is meeting the rest of India. I would say that if Ladakh and other Himalayan regions have to meet rest of India, it has to be on equal terms, with equal respect. And movies are things which give you that power. I was just mentioning to Shri Vidhu Vinod Chopra ji that I had heard this story, and it's a true story, that when the Chinese Prime Minister wanted to come to India, he was told that if you want to understand and go and talk in India, you better see Three Idiots first. Don't go to India. And this was insisted upon by his own son. So this is the power of the movies. So if I want to talk to rest of India, if I want to talk to rest of the world, I must talk through a creative medium so that people listen to you, so that people understand you. And this is the genesis, this is the thought behind this Himalayan Film Festival. I would say just one other thing, that we do look forward to making our youth much more stronger
in terms of technology, techniques. They have the talent, they have everything, but it is our job as administration to make sure that they have the technical skills to talk to the world. And this is something on which we would be requesting help from the Ministry of Information and Broadcasting. This is something on which we would work for in times to come. There is an issue that should Himalayan Festival be always in Ladakh, or should it be rotating around different states, 12 states, which would become like Kumbh, that every 12th year a state gets it. But I have requested Honorable Minister to guide us and to take a decision that how it should proceed, and we would look forward to his guidance in the matter. With these words, let me wish all of you present here, the movie lovers, all the best of viewing, and to the young people of Himalayan region and particularly Ladakh, my best wishes for making it big in India and abroad. Thank you so much. Jule. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Now the time has come to felicitate veterans of Ladakh, veterans in the field of films and performing arts. Ladies and gentlemen, the first veteran, this award will be given posthumously. A name, Shri Tashi Rabgyas, is a name which needs no introduction. Before saying anything, may I request for a very short video on contributions made by Shri Tashi Rabgyas in his life. May I request for the short video on Shri Tashi Rabgyas ji. But the main point is to read the books, to understand the books. And there is Most eminent scholar, historian and poet of Ladakh, late Shri Tashi Rabgyas, was born on 17th October 1927 in Tukcho family of Sethi village. For his vast body of work, he has been awarded Rope of Honor, Sahitya Academy Bhasha Samman and Dokra Ratan. His glorious journey began in the year 1952 when he wrote the first ever modern Ladakhi song. In 1971, he published a collection of 200 folk songs of Ladakh. In 1972, when All India Radio Lay was opened, his song and poetry books were immediately picked up for the radio. His another significant contribution is towards theatre. And I was asked to do lip sync, which I did very competently, it seems. It was a hit, absolutely. He truly had such a flair with his penmanship that mundane emotions of day-to-day living became great poetry. He led a very harmonious life and along with his wife Kunzis Dolma raised 5 children who are well placed and successful in their respective fields. In the later years, he dedicated his life to deep spirituality, and at the ripe old age of 94 in 2020, he passed away peacefully. books are not for keeping in the libraries. You should read my books. Thank you. Tashi Rabgyas is a name devoted in his life in the field of preservation and development of rich culture. Apart from being an author of a number of books, he was a scholar of Mahayana and Vajrayana Buddhism. For all his contributions in his life for beautiful works of art, he has been conferred with many awards like Robe of Honor by J&K Culture Academy, Sahitya Academy Bhasha Samman in 1998, and a Lifetime Achievement Award by International Festival of Buddhist Heritage of Ladakh in 2014, among others. We have amongst us his son, Mr. Tashi Gyaltsen, and I would like to request the Honorable Minister, Information Broadcasting, Shri Anurag Singh Thakurji, and the Honorable Lieutenant Governor, Union Territory Ladakh, Shri Radhakrishna Mathur ji, to please present this award posthumously to the proud
proud son of the soil, Mr. Tashi Rabgyas. And with that, the next name in the list is Mr. Ali Muhammad. Mr. Ali Muhammad is someone without whose delightful presence and surna instrument and ceremonial occasion in Ladakh seems incomplete. He is known for his remarkable contribution in preserving, promoting and enriching traditional Ladakhi music by giving music to over 700 archival songs for Ladakh Academy of Art, Culture and Language, Leh. For his utter dedication to his art, he has unsurprisingly been awarded with the State Award from Jammu and Kashmir Government, Bharti Jyoti Award 2011, Best Citizen Award 2012, Leh District Award and Glory of India Award. Mr. Ali Muhammad. Please everyone put your hands up together. Mr. Ali Muhammad. उनके बाद मैं बताना चाहूंगी Sri Ali Muhammad, here he is on stage, famous and renowned surna instrumentalist. Mr. Ngorub Namgyal, ladies and gentlemen, ex-senior music composer of All India Radio Leh, has been a household name ever since he started performing in dramas as a singer and later as a composer of songs in the early 70s. With a powerful and a melodious voice, he rose to fame very early by dint of sheer dedication to art and music and went on to receive the prestigious Padma Shri Award by the President of India in the year 2004, among many other eminent appreciations. Shri Ngorub Namgyal, ladies and gentlemen. Here, Mr. Tsering Stanzan is a name. One of the noted Ladakhi folk singers, Tsering Stanzan has guided the recording of 800 Ladakhi folk songs with his exceptional memory and grit. As popularly stated in his praise, he has 400 folk songs memorized by heart, which he acquired from his ancestors orally. He has worked with the All India Radio Leh since 1973 to revive the Ladakhi folk culture and has performed more than 200 songs. Mr. Tsering Stanzan's grandson, Tsering Laskap, is here to receive on behalf of Mr. Tsering Stanzan. And to this noble end, he runs workshops. Mr. Tsering Stanzan runs workshops in favor of interested singers to learn their tunes and songs and transmit what he has orally acquired. Here, I would invite Mr. Mipa Motsal. He needs no introduction, ladies and gentlemen. He is a man of talent and virtue, coupled with an impressive background in theatre. He is the first Ladakhi graduate from the National School of Drama, an awardee of Sangeet Natak Academy Award, JNK State Awards. He is also the president of Ladakh Theatre Organization and Ladakh Cultural Forum Leh. His talent in films comes with no surprise, with an experience with directors like Sanjay Khan, Harry Marshall, Roman Mayer, and with Anubhav Sinha. Mr. Mipa Motsal, ladies and gentlemen. Next is the personality. When the film culture of Ladakh and its representation in mainstream Indian culture will be thoroughly documented, the name of Phuntsog Ladakhi will appear time and again, performing across a host of roles in Bollywood movies through the late 1970s. He went on to become a household name in the late 1980s. Phuntsog also contributed to the golden age of Indian television serials with his diverse role in Doordarshan-sponsored television shows like Intezar and Paramveer Chakra, and working with luminaries like Syed Mirza. He has also produced and directed more than 100 documentaries for different government agencies. Committed to his passion for acting and also his land of origin, Phuntsog pioneered the new wave of popular Ladakhi music. He produced his own television series, crafted numerous documentaries on Ladakh, composed a regimental song for Ladakh Scouts, and eventually dedicated his life to spreading the methods of yoga and meditation. Phuntsog Ladakhi, ladies and gentlemen, huge round of applause. And now after that, last but not the least, the next name in the list is Haji Muhammad Hussain Master. Master Muhammad Hussein's life is inspirational to all the individuals and societies who actively worked towards achieving a better future which mirrors the goodness, knowledge and rich culture heritage of the past. His sincerity and dedication earned him fame and reputation as an educator. Apart from the development, he performed a major role in maintaining the communal harmony and brotherhood in the region. In 1971, the Government of India Ministry of Home Affairs honored him with Certificate of Appreciation in recognition of valuable service rendered by him as an enumerator during the 1971 census enumeration in Jammu and Kashmir. Everyone, please give him a big hand. And thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. And now, moving forward in this evening, ladies and gentlemen, we will quickly move forward. And
The next I'm going to request to our Honorable Minister. Superb. Wow. Everyone, please put your hands up in the air. Thank you. Thank you so much. So much of energy. So much of energy. So much of love. Thank you so much. Moving forward, now request Honorable Minister Information and Broadcasting, Shri Anurag Singh Thakur, to kindly say few words. Everyone, please give him a big and the loudest round of applause. Anurag Singh Thakur ji. पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल के अवसर पर मंच पर उपस्थित लद्दाख यूनियन टेरिटरी के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर आदरणीय आर.के. माथुर जी, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर मेरे दोस्त ताशी जी, लोकसभा में मेरे सहयोगी तेज तरार युवा नेता जामयांग नामग्याल जी, जिनकी बहुत सारी पिक्चर्स को आपने देखा, ऐसे मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर श्री विधु विनोद चोपड़ा जी, अनुपमा चोपड़ा जी, मंच पर उपस्थित जिनकी पिक्चर से आज पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत होगी, उसके डायरेक्टर विष्णुवर्धन जी, और जिनको देखने के लिए आप लंबे समय से यहां पर बैठे हैं। बड़े पर्दे पर तो देखा ही है, रूबरू भी आप जिनको देख रहे हैं, ऐसे चमकते सितारे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सिद्धार्थ मल्होत्रा जी, उपस्थित सभी माननीय अधिकारीगण, उमंग नरूला जी एडवाइजर हैं हमारे, पद्मा जी हमारी ही विभाग से हैं और जिन्होंने इस फेस्टिवल को करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी महानुभाव, आदर के योग्य मेरे सभी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, लद्दाख हिल काउंसिल और यहां के सारे एडमिनिस्ट्रेशन को इस नई सोच के लिए, एक नए उत्सव की रचना करने के लिए, फर्स्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की रचना करने के लिए और उसको अमली जामा पहनाने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। अगला फिल्म फेस्टिवल लद्दाख में होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये केवल आपके उत्साह पर निर्भर करता है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है। अगर आपको लगता है जिस फिल्म इंडस्ट्री को ये खिताब हासिल है कि दुनिया की सबसे ज्यादा फिल्म बनाने वाली कोई फिल्म इंडस्ट्री है, तो वो हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है। और मुंबई से चलकर हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, अभिनेता आप सबके बीच में आए हैं। जोरदार तालियों के साथ, करताल ध्वनि के साथ इनका स्वागत, अभिनंदन। देखिए, मैं भी पहाड़ी हूं, साथ के लगते पहाड़ी राज्य से आता हूं और पहाड़ी तो गर्मजोशी के लिए जाने जाते हैं, स्वागत करने के लिए भी, सत्कार करने के लिए भी। वी आर नोन फॉर आवर वार्म हॉस्पिटैलिटी एंड लेट अस पुट अ हैंड टुगेदर फॉर ऑल द डिग्निटरीज ऑन द डायस। अगली बार मंच इससे भी बड़ा हो
तो तालियां उतनी जोरदार होनी चाहिए। इतने बड़ा मंच चाहिए। एक बात तो पता चली आज आकर, मेरे लद्दाखी भाई बहनें गाने बहुत लिखते हैं। किसी ने 500 गाने, किसी ने 800 गाने, किसी ने 200 गाने। मंजू जी आपके वहां भी लिखते हैं क्या? मुझे लगा तो पूरे पहाड़ी रीजन में ही ये कला है। और शायद कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री का जितनी नजर पहाड़ों पर होनी चाहिए थी, अगर कहीं कम रह गई होगी, तो भारत के सूचना प्रसारण मंत्री होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पहाड़ों को नई पहचान दिलाने का काम हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में करेंगे और अपनी पूरी फिल्म इंडस्ट्री के सहयोग से करेंगे। ट्रांस हिमालयन रीजन की अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग फ्रॉम लद्दाख टू जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, we have diverse culture. We have lot to showcase. We have talented youth among us. We have to give them more opportunities to showcase their talent. And during the COVID-19 pandemic, when the world was struggling to fight it, the industry, with the use of technology, earlier our engineers were known for their software skills, IT skills. Now during this time, we have seen the emergence of the OTT platforms. I will come to that later with the numbers and all. But all I have to say is, cinema provides a platform to bring all the cultural diversities together. It bonds different diversities, the cultural diversities together. और मैं तो कहूंगा, पूरे देश की संस्कृति को एक मंच अगर कोई प्रोवाइड करता है, तो वो सिनेमा जगत है, और इसका हम जितना सदुपयोग करें उतना हमारे लिए कम है। ना केवल देश बल्कि दुनिया भर में भारत के कोने कोने को नई पहचान दिलाने का काम किया है तो फिल्म इंडस्ट्री ने किया है, एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। और जब पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की बात की गई, तो एक ऐसी पिक्चर से शुरुआत करने की बात कही गई जो एक फौजी पर भी है और जिसका रिश्ता पहाड़ों से भी है। ये वो रीजन है जिसने कारगिल का युद्ध देखा भी और उस समय के हालात को भी देखा। लद्दाख के लोग वो हैं जहां भारत के सैनिक देश के बॉर्डर पर देश की सीमा को सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो हमारे लद्दाखी भाई बहन भी बिल्कुल पीछे नहीं रहते, कंधे के साथ कंधा लगाकर भारत के हितों की रक्षा करते हैं। मेरे भाई और बहन, आप सबके ध्यान में मैं एक बात लाना चाहता हूं। शेरशाह में जो किरदार सिद्धार्थ मल्होत्रा जी ने निभाया है, वो किसी और का नहीं, वो परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा का है। कैप्टन विक्रम बत्रा मेरे ही प्रदेश हिमाचल प्रदेश से आते हैं। कारगिल के युद्ध में 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, तो उसमें से 2 मेरे प्रदेश हिमाचल प्रदेश से हुए। राइफलमैन संजय कुमार जो मेरे अपने ही संसदीय क्षेत्र से हैं, और दूसरे कैप्टन विक्रम बत्रा हुए। और देश के पहले परमवीर चक्र विजेता भी मेजर सोमनाथ शर्मा कहीं से आए, तो देवभूमि वीरभूमि हिमाचल प्रदेश से आए। मेरे प्रदेश को गौरव प्राप्त है कि देश के लिए जीवन बलिदान करने के युवा हमारी धरती से आए हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहादत किसी ने दी थी? सबसे ज्यादा शहादत तो हिमाचल के युवाओं ने दी थी, जो सेना में उस समय थे, देश की रक्षा सुरक्षा करने का काम भी किया,
टाइगर हिल पर तिरंगा फहराने का काम भी किया और एक एक पाकिस्तानी को खदेड़कर भारत का एक एक इंच वापस लेने का काम भी भारत के वीर सैनिकों ने किया, मेरे भाई और बहन। और कहीं ना कहीं जब ऐसी पिक्चर्स बनती हैं तो 90 के दशक में जो युद्ध हुआ वो आज की पीढ़ी को उन वीर सैनिकों की याद करवाता है जिनकी शौर्य गाथाओं को केवल आज की पीढ़ी नहीं, विष्णुवर्धन जी, आपके सिद्धार्थ जी की ये मूवी, ये आज की पीढ़ी नहीं, आने वाली कई और पीढ़ियों को प्रेरणा भी देगी और देश के प्रति समर्पण की भावना को भी जागृत करेगी। एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। सिद्धार्थ जी ने बहुत सारे किरदार निभाए होंगे, आपने बहुत सारी पिक्चर्स बनाई होंगी, लेकिन इस किरदार ने आपको एक नई पहचान दी है। और मैं चाहूंगा कि भविष्य में भी आप कभी, यह नहीं हो सकता कि आप इसी तरह के रोल करें, लेकिन इंडस्ट्री ने बहुत सारे इस तरह की थीम्स को लेकर चले हैं जो शायद आज से पहले कोई कल्पना ही नहीं करता था। आज से 10 साल पहले की पिक्चर्स देखिए, जब से मैं छोटा था और अब तक भी देखूं तो पिछले 6-7 साल छोड़ दीजिए तो उससे पहले की पिक्चर्स लगभग एक जैसी होती थी। अब लोग ज्यादा चुनौतियों को स्वीकार करना शुरू किया है, नई नई थीम्स के साथ चलना शुरू हुए हैं और जनता ने भी उसको स्वीकार करना शुरू किया है। और जब मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा था तो अगर आप उनका ग्रोथ रेट देखेंगे तो दुनिया में अगर मैं कहूं सबसे तेजी के साथ कोई देश जहां पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ट्रैफिक बढ़ रहा है तो उसमें एक भारत है। तो उसके साथ बहुत सारे अवसर खड़े होते हैं। अवसर केवल मुंबई के लोगों के लिए नहीं है, केवल दिल्ली के लिए नहीं है, केवल तमिलनाडु तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं है, केवल बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं है। ये छोटे से छोटे राज्य, अगर मणिपुर ने करके दिखाया है, मेघालय ने करके दिखाया है कि वहां की फिल्मों को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली है, तो लद्दाख भी पीछे नहीं रहेगा, जम्मू कश्मीर भी पीछे नहीं रहेगा। हमको भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पहचान आने वाले समय में मिलेगी। जिसका कंटेंट अच्छा होगा वो आकर्षण का केंद्र बनेगा। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, जिसका कंटेंट अच्छा होगा वो ट्रैफिक अट्रैक्ट करेगा अपने प्लेटफॉर्म पर। 5-6 प्लेटफॉर्म्स कम से कम होंगे। कभी कोई एक ऐसा सीरीज आती है, वेब सीरीज, जो इतना ट्रैफिक उस प्लेटफॉर्म पर बढ़ा देती है जिसकी वो कल्पना भी नहीं करते। दूसरा प्लेटफॉर्म हो सकता है 2 साल से चल रहा हो, लेकिन उस पर कोई एक सीरीज ऐसी आएगी जिसके कारण एकदम से वो ट्रैफिक बढ़ेगा और उसको ज्यादा लोग सब्सक्राइब करना शुरू कर देते हैं। द पावर लाइज इन द कंटेंट एंड इंडिया कैन बिकम द सब कॉन्टिनेंट ऑफ कंटेंट क्रिएशन फॉर द वर्ल्ड। But are we ready for that? Are we grooming enough people in different sectors to create that kind of content for the world? Post-production content, post-production work which happens in India. Many global great success movies, blockbusters, the post-production work happened in India. And trust me, with the visual graphics, with the gaming industry, there's a lot of opportunities. You can make one movie, for example, in Hindi or maybe in Telugu. You can dub it, you can do the subtitling. There is a lot of other ways of doing it now. And you can run it in different sectors. Many Indian movies have done well in China as well.
So the issue is what kind of movies or what kind of content we generate or create. और मुझे पूर्ण विश्वास है उसमें हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग समय के साथ साथ बदलाव भी कर रहे होंगे और आगे भी करेंगे। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, हिमाचल प्रदेश की बात है, लद्दाख की बात है, यहां पर भी हम प्रयास करेंगे। जो मांग इस मंच से आई है, हमारे सीईसी ने भी कहा है, हमारे एलजी साहब ने भी कहा है, एमपी साहब ने भी कहा कि फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ लद्दाख को जोड़ा जाए, जम्मू कश्मीर को जोड़ा जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इसके लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जल्द से जल्द आपके साथ जोड़ दिया जाएगा। दूसरा, मैं ये कहीं ना कहीं से कश्मीरी जागा है बीच में से। विधु विनोद चोपड़ा जी को मैंने कहा कहीं ना कहीं से कश्मीरी जागा है बीच में से। देखिए, कश्मीर ने जो पिछले 70 वर्ष में सहा, वो अगर नहीं सहा होता तो ना जाने कितने अनुभवी लोग और प्रतिभाशाली लोग कश्मीर की धरती से ना जाने देश और दुनिया के लिए क्या क्या बनाकर दिया होता। लेकिन अभी भी कुछ बदला नहीं है। बहुत सारी संभावनाएं आपके सामने हैं। We'll try to put it together and bring all the opportunities to your footsteps, to your doorsteps. That what we'll try to do. मास्टर क्लास की बात यहां पर कही गई। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 20 से 28 नवंबर तक गोवा में होता है। इस साल भी होगा, हाइब्रिड मॉडल पर होगा। मैं चाहता हूं, मेरे मन की यह सोच है कि जब हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, मैं देश के 75 कम से कम ऐसे प्रतिभाशाली उभरते हुए डायरेक्टर्स को और जो भी उस फील्ड से जुड़े हुए हैं, कम से कम 75 ऐसे युवाओं को हम मास्टर क्लास के लिए गोवा में आमंत्रित करें और उसका सारा खर्चा भारत सरकार उठाए और ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं को गोवा में आने का अवसर भी मिले और मास्टर क्लास जो दुनिया भर के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और बाकी सब लेते हैं, टेक्निकल लोग, वो सब आप उसको ले सके। लद्दाख से भी किसी को बुलाना चाहिए कि नहीं? कोई संभावनाएं हैं? लद्दाख से कोई आ सकता है मास्टर क्लास के लिए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बीच बीच में खो जाते हैं आप लोग। किसी ने शायद अब एक और गाना लिखना शुरू कर दिया होगा साथ साथ में। महलजी साहब को कह रहा था कि मुझे लगता है हमारे पहाड़ों में ऐसा होता है, ये पूरे ट्रांस हिमालयन रीजन में ऐसा ही कल्चर है। मेरा एक अनुरोध आपसे रहेगा, जब हम इसके साथ फूड फेस्टिवल साथ में करते हैं, फैशन फेस्टिवल भी साथ में करें, लेकिन ये केवल लद्दाख का सीमित होकर नहीं रहना चाहिए। उस पूरे हफ्ते में मौका देना चाहिए कि पूरे हिमालयन रीजन के जो अलग अलग कुजीन्स हैं, आप उनको यहां पर लोगों के पास परोसे, लोगों को अवसर दें, वहां की वेशभूषा कैसी है वो जानने का अवसर दें, क्योंकि आपके लद्दाख के अलग अलग रीजन्स की अलग अलग है, मेरे अपने हिमाचल की ही अलग अलग है, अरुणाचल प्रदेश के तो डायलेक्ट ही 50 से ज्यादा है, मेरे यहां के डायलेक्ट 26 से ज्यादा होंगे। तो बहुत कुछ हमारे पास दिखाने के लिए है दुनिया को। और आपकी आबादी 1.5 लाख की है और पिछले महीने लद्दाख में 1.5 लाख लोगों ने एयरपोर्ट से या तो लेह से बाहर जाने का काम किया है, लेह में आने का काम किया है 1 महीने के अंदर। और इसीलिए आपके लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से हमने नया टर्मिनल बनाने का काम भी शुरू किया है। यहां पे लाइट इतनी कम है कि मैं यहां से कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा। मैंने तो सोचा था कि यहां पर कुछ लिख लुक के लेकर जाऊंगा, कुछ आंकड़े पढ़ूंगा, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा टेढ़ा करके पढ़ना पड़ रहा है,
कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है, वो जो हमारा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर है, उसका जो $30 बिलियन का 2023 तक होने की संभावनाएं हैं। आप कल्पना कीजिए कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर कितना बड़ा इस देश में होगा, कितना रोजगार उत्पन्न करेगा, तो लद्दाख को भी उसमें पीछे नहीं रहना है। सेकंड लार्जेस्ट हमारी पे टीवी मार्केट हिंदुस्तान की है, और मैं बात करूं तो चाइना के बाद ये सबसे ज्यादा है, जहां पर लगभग 19 करोड़ 70 लाख पे करके यहां पर अपने टीवी चैनल्स को देखते हैं। लेकिन जितना भी हमारा बॉर्डर का इलाका है, हमने यहां पर 30,000 फ्री डिश खरीदकर हमने दिए हैं, और जो घर रह गए हैं, मेरा प्रयास होगा अगले 1 साल के अंदर उन सब घरों को भी फ्री डिश दे देंगे, ताकि आप अच्छी से अच्छी पिक्चर्स देख सके। यही नहीं, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग ओटीटी प्लेटफॉर्म जब मैंने ये कहा, तो स्ट्रीमिंग मार्केट की जब मैं बात करता हूं, तो हम लोग दुनिया का छठा सबसे बड़ा ओटीटी की मार्केट यहां पर बनने वाले हैं 2024 तक। और कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट में बात करूं तो 28.6% अगले 4 वर्षों में इसकी होगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ऑनलाइन गेमिंग की बात जो मैं पहले कर रहा था, ये 18% 2020 में हुई है, और वो भी तब हुई जब कोविड का समय था, और 2030 तक ये 20% की दर से जो बढ़ेगा, तो लगभग 36 करोड़ लोग इस पर होंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो विजुअल गेमिंग, ये सारा जो विजुअल इफेक्ट्स की बात भी करता हूं, ये सारी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। हम इसके लिए मुंबई में एक इंस्टीट्यूट भी शुरू करने जा रहे हैं, ताकि ये जो पोस्ट प्रोडक्शन यूनिट्स हैं और आने वाली भविष्य की एनिमेशन से लेकर बाकी फिल्म इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स हो, वो सब वहां से हम स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से पूरी कर सकें। ऐसा हम सबका प्रयास रहेगा। भारत की जीडीपी में 1% की कंट्रीब्यूशन हमारी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर करता है। मैं कल परसों टेलीविजन के सेक्टर की बात कर रहा था। जितना कुल रेवेन्यू टेलीविजन का आता है, उसका 93% केवल एंटरटेनमेंट का सेक्टर है, जनरल एंटरटेनमेंट का। 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू उस पर है, जो कल्पना से परे है। अपार संभावनाएं आप सबके सामने हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हम सबको प्रयास करके वहां पर लाना है। जॉब क्रिएशन की बात करूं, डायरेक्ट तौर पर 12 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, इनडायरेक्ट तौर पर 20 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। और ग्रोथ की बात करें तो ये तो ग्रोथ, जो एनुअल ग्रोथ रेट की मैं बात कर रहा हूं, तो लगभग 17% होगी। सॉफ्ट पावर इंडिया की है तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, जो हमें दुनिया के साथ जोड़ती है और डायस्पोरा के साथ जोड़ने का काम भी करती है। जो फिक्की के कुछ आंकड़े हम सबके सामने हैं, 28 मिलियन इंडियन हैं जो 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से जो पे करके इन सब प्लेटफॉर्म्स पर हैं। आने वाले समय पर वो 53 मिलियन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हो जाएंगे। ये मैं विदु विनोद चोपड़ा जी और विष्णुवर्धन जी को इसलिए बता रहा हूं कि बड़े पर्दे के साथ साथ अब छोटे पर्दे की बात भी बड़ी गंभीरता से लेनी शुरू हो गई है। और कहीं ना कहीं छोटे पर्दे पर जो दिखाया गया, अब उसको बड़े पर्दे पर दिखाने का भी एक प्रयास किया जा रहा है। हमारा प्रयास भी रहेगा कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है, जो भारत का, जो हम 20 से 28 नवंबर तक करेंगे, वहां पर जो ओटीटी पर शानदार ऐसे प्रोग्राम्स और फिल्म्स आई हैं, हम इस साल प्रयास करेंगे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में वहां पर जगह दी जाए और दुनिया को उसको दिखाने का अवसर भी मिल सके। ज्यादा ना कहता हुआ, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि भाषण कम हो, आप सब लोग पहली फिल्म को देखने का इंतजार कर रहे होंगे, और कुछ और बातें भी यहां पर मंच में किसी और ने कहनी होगी तो उनको भी आप सुनना चाहेंगे। मैं एक बार फिर सिद्धार्थ जी का, विदु विनोद चोपड़ा जी का, अनुपमा जी का, विष्णुवर्धन जी का, सभी जो बाहर से आए हुए हमारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए गणमान्य व्यक्ति हैं, आप सबका एक पहाड़ी होने के नाते, एक फौजी होने के नाते और फिल्म इंडस्ट्री से अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े होने के नाते, क्योंकि सूचना प्रसारण मंत्री भी हूं, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन यहां पर करता हूं।
मैं एक बात जरूर कहूंगा, फिल्मों से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन फौजी जरूर हूं। टेरिटोरियल आर्मी में मैं कैप्टन हूं, अभी भी सेवाएं दे रहा हूं 124 सिख रेजिमेंट में। तो फौज से जुड़ी हुई बात कभी भी कुछ आती है तो कहीं ना कहीं अंदर के फौजी को जगा देती है। मेरी तो परिवार की 3-4 पीढ़ियां फौज में ही थी, और जब किसी फौजी की शौर्यता वीरता पर यह फिल्म बनती है तो मुझे लगता है मुझे ही नहीं, हर फौजी को भी और हर देशवासी को भी प्रसन्नता होती होगी, और हर लद्दाखी को होनी चाहिए, क्योंकि पद्मा जी जो मंच पर बैठी हैं, इनके पति भी कर्नल सोनम वांगचू महावीर चक्र विजेता है, लिविंग हीरो है। मैं ठीक कह रहा हूं नहीं कह रहा? लिविंग हीरो है, और कारगिल के युद्ध में उनको भी अपनी वीरता के लिए महावीर चक्र मिला था। तो एक और जहां हिमाचल के सपूत कैप्टन विक्रम बत्रा को उनकी वीरता शौर्यता के लिए यहां पर हम देखेंगे, तो जिस भूमि पर मैं खड़ा हूं लद्दाख की, वहां के एक और वीर कर्नल सोनम वांगचू को भी मैं याद करना चाहता था, और इसको पिरोने का काम उनकी धर्मपत्नी ने किया जो आईएएस ऑफिसर भी हैं। तो आपको भी बधाई, और चाहूंगा कि जो हमारे 2 युवा साथी हैं, यहां के माननीय सांसद और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर सीईसी, जिन दोनों ने सोचा कि आपको फर्स्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल करना है, एलजी साहब ने पूरी ताकत लगाई। आपकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल शुरू हो रहा है, तो जितने लोग बाहर से आए हैं सभी अतिथियों के लिए और पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल के शुरुआत पर स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए खड़े होकर जोरदार करताल ध्वनियों के साथ, तालियों के साथ इसकी शुरुआत की जाए। जोरदार तालियों के साथ। देखिए, भारत के किसी और राज्य में जाता तो ताली के साथ सीटी भी बजती। मैंने सोचा पहाड़ों में सीटी मारते नहीं हैं, पहाड़ों में सीटियां कम मारते हैं, गाने ज्यादा लिखते हैं। तो आपको फर्स्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आपने आज शुरुआत की है, ये आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों पर छुएगा। जो विशालता लद्दाख की पहाड़ियों की या पहाड़ों की है, उसी तरह से विशाल हिमालयन फिल्म फेस्टिवल होगा, क्योंकि जहां पर हिमालय की बात आ गई वो कभी छोटा नहीं हो सकता, वो दिन प्रतिदिन बड़ा ही होता जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। Thank you, sir. Thank you so very much for very informative and promising words. पूरे ऑडियंस में उत्साह भरने के लिए एक बार जोरदार तालियां हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी लोगों को एक कष्ट देना चाहूंगी, ग्रुप फोटो के लिए मैं रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कम फॉरवर्ड। सारे फोटोग्राफर्स, शटरबक्स, प्लीज कम फॉरवर्ड। दिस इज अ मोमेंट टू कैप्चर for the life. This is the history being made, the first Himalayan Film Festival, and we have the dignitaries present here. This is the moment which we are going to cherish forever for the generations to come. Devir Sajano, the Himalayan Film Festival ke hamare pehle dignitaries, the proud galaxy of stars amongst us. Thank you. And I will request the dignitaries to please join our audience because जैसे कि अनुराग सर जी ने कहा था कि सभी मूवी देखने के लिए, शेरशाह मूवी देखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट all the dignitaries to please join us amongst the audience. Please take your seats in the auditorium and let's enjoy the evening now all together. Thank you so much all our dignitaries for joining us on stage. Please make yourself comfortable in the auditorium.
और जब तक ये स्टेज सेट होता है हमारे कल्चर प्रोग्राम और हमारे मूवी के लिए, आई विल रिक्वेस्ट सोनिया, बिकॉज हमारे बीच इस बीच जो एज डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिस्टर विदु विनोद चोपड़ा एंड ऑफ कोर्स द फिल्म क्रिटिक द फेमस अनुपमा चोपड़ा जी हमारे बीच है। हम ये समय बिल्कुल नहीं गंवाना चाहेंगे कि आप यहाँ पे साइलेंट से बैठे। हम जितनी एनर्जी आप यहाँ स्टेज पे दिखाए थे, हम चाहते हैं कि हमारे लोग जो है, कुछ हमारे सवाल है, आप प्लीज रूबरू हो उनसे और हम चाहेंगे कि इसका जवाब दें और लोगों को, हमारे लोगों को उजागर कर अपने थॉट से, थिंकिंग से, वाइज वर्ड से। ओवर टू यू सोनिया। Check. Okay. So now we have a cultural festival coming up on stage. But before that, as आज हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही मशहूर फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर विदु विनोद चोपड़ा जी और अनुपमा मैम, जैसा कि मैम मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो मोमेंट्स हैं, दिस इज अनरियल फॉर मी। सो आई एम ग्रेट फैन ऑफ योर्स। सो सर, आप लोगों से बात किए बिना तो हम आपको कहीं जाने देंगे ही नहीं। आई वॉन्ट कि सर के लिए एक माइक लाया जाए। सो एज दिस इज हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, और नई अपॉर्चुनिटीज, नए जो सबको मौके मिलने वाले हैं। लेकिन जैसा आपकी फिल्म आपने शूट कर चुके हैं 3 इडियट्स यहाँ पर, मैं छोटी थी, स्कूल में देखी थी, और जब पैंगोंग वाला वो सीन आया था ना, तो दैट बिकेम माय ड्रीम डेस्टिनेशन। एंड मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्योंकि यहाँ पर जो वेदर कंडीशंस हैं बहुत ही टफ हैं एंड लॉजिस्टिक्स की जो है वो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो हाउ यू फील कि यहाँ पर जो हमारा जो द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल है इस चीज को आगे लेके जाएगा, और वो जो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमें फेस करनी पड़ सकती है, सो कैसे कैसे ये सब होगा? आई वांट यू टू आंसर फॉर दिस। देखिए, मैं सबसे पहले ये प्रॉब्लम्स पे बताना चाहूंगा जो लोग सुन रहे हैं कि जब हमने फिल्म बनाना शुरू किया था तो इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। ना खाने को था, ना पीने को था, ना फिल्म बनाने का स्टॉक मिलता था। लेकिन हम आज आपके सामने खड़े हैं, तो ये प्रॉब्लम्स जब आती हैं ना, तभी पहाड़ी लोग खासकर जागरूक होते हैं, जैसा कह रहे थे मिनिस्टर। तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी। हमने जब वहां पैंगोंग लेक में गए तो कितनी प्रॉब्लम थी। हमारे 3 ट्रक बर्फ में 1 साल लगे रहे, पूरे वहीं फंसे रहे। लेकिन problems shouldn't come in the way. I would tell all the young filmmakers here and all the filmmakers here, I'm going to have a master class with you later, that let these problems be your strength rather than your weakness. Thank But you. sir, the best part is कि आपके फिल्म का जो पोस्टर है वो पैंगोंग पे 3 Idiots Point के तरीके से लगा हुआ है ना। I went there ना, तो they were like this is 3 Idiots Point. तो एक जगह का एक नाम बना दिया है आपने, और that's fantastic. And sir, उसके अलावा ये जो हिमालयन फिल्म फेस्टिवल जो एक सोच है बेसिकली, और यहाँ के जो फिल्म मेकर्स हैं उन्हें एक मौका भी दिया जाएगा, और आपको क्या लगता है कि क्या क्या हमें नया देखने को मिल सकता है यहाँ से? देखिए, जैसा पद्मा जी ने कहा, उन्होंने अनु को सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था और इमीडिएटली हमने रिस्पॉन्ड किया। मैंने अपना सब कैंसिल किया, हम लोग उठ के यहाँ आ गए। इसका मतलब है कि हम लोग स्ट्रांगली फील करते हैं कि ये जो लद्दाख और जो ये हमारा पर्टिकुलरली हिमालयन रीजन है, इसको जितना हम लोग आगे बढ़ा सकें, क्योंकि जितना पीस और जितना खूबसूरती, रोमांस ये जितना पहाड़ों में होता है ना, उतना नहीं होता है। तो मैं समझता हूं कि देश को बहुत जरूरत है इन युवा फिल्म मेकर्स की, इनकी कहानियों की, कश्मीर की कहानियों की।
ताकि लोगों तक ये कहानियां पहुंचे। बहुत जरूरी है ये। विदु सर, यहाँ पे एक पॉइंट आपके सामने लाना चाहूंगी। जितने भी हमारे इस वक्त फिल्म मेकर्स हैं, जो परफॉर्मर्स हैं, जितने भी मूवीज या डॉक्यूमेंट्रीज बने हैं, खासकर मूवीज की बात करूं तो जितने भी परफॉर्मर्स हैं वो पहले कभी So I have some, Punjabi touch in me as I'm working in Punjabi cinema. I'm a great cinema lover. So now my next question goes to you, Anupama ma'am. ये question ये बिल्कुल ना मेरे दिल से आ रहा है। ये कहीं आप चेक कर सकते हैं, ना तो कहीं मेरी स्क्रिप्ट में है और ना ही कहीं मैंने फोन में लिखा है। This is just coming strictly from the heart. जो हिमालयन फिल्म बनी, because आप इतनी सारी फिल्मों को रिव्यू करते हैं, you are a great critic. And जब यहाँ पर फिल्में बनेगी, जब यहाँ के लोग फिल्में बनाएंगे, तो क्या हम फिल्म को करेंगे? आप देख रहे हैं